بتا دیں کہ 2014 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے سے روکا تھا اور کس نے آپ کی زندگی اجیرن کی تھی، اور آج 2023 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دے دی یا آپ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی؟ اچھا، ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2014 میں جب آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ ممکنہ طور پہ میڈیا میں بھی آیا تھا، ایک ہمارے دوست جرنلسٹ سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان شاید باپ بننے والے ہیں اور ایک 21 سالہ خاتون کی ہاتھ میں ان کی کوئی فیصلہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع؟ ہاں جی، تو 2014 میں لندن میں تھی، میں لندن چلی گئی تھی، مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا، میری اپنی ایک ڈیسیجن تھی کہ میں پاکستان سے چلی جاؤں، اور جس ایجنسی کے ساتھ لندن میں میرا کانٹریکٹ ہوا تھا، اینڈریو لاؤنی ایجنسی، انہوں نے وہ بک پبلش کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر مجھے امریکہ میں جا کے اس کو صرف کنڈل پہ، جو ایک آن لائن امیزون کا ایک سسٹر کمپنی ہے، کتابوں پہ آن لائن وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے مجھے اس کا ایک چھوٹا سا ورژن، اور اس میں جو کافی حقائق جو آج میں بیان کر رہی ہوں، وہ لیگلی ایجنسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں کریں گے، کہ لائبل لاز بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں واپس آئی، اور اس کے بعد جو میرے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ ہیک ہوئے، مجھے مختلف کیسز اور کچھ پوسٹ وغیرہ ہوئے۔ اس وقت ایک بہت اچھا آپ کو پتہ ہے نا، بہت اچھا دور تھا فریڈم آف ایکسپریشن کا، فیشزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی عمران خان کے بارے میں کوئی پوسٹ کر دیں تو آپ کے پیچھے ایک پوری سی ایک باٹس کی ایک بارات آ جاتی تھی آپ کو ٹرول کرنے۔ اب وہ بلاسفمی میں آپ کو گالیاں دیں، آپ کو غداری میں آپ کو فریم کریں، کچھ بھی کر دیں، تو وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے بھگتا ہوا ہے۔ بٹ میں نے، کیونکہ میرے فادر اس وقت حیات تھے، ان کا مجھے بڑا وہ مان تھا کہ میں نے جو ڈیسیجنز لی ہیں یا میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں، اور میں نے جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بھول جاؤں، کیونکہ اس کی جو بیک لیش تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ تو وہ میں نے بڑی خاموشی سے گزارا، اور صرف میں نہیں ہوں، اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس خوبصورت دور کا کے وکٹمز رہے ہوئے ہیں، آج وہ سب یہاں موجود ہیں، جن کے ساتھ یہ ٹرولنگ کی گئی، جن کو آف ایئر کیا گیا ہے، جن کو ایک ایک ٹویٹ پہ ہراس کیا گیا ہے۔ تو رہی وہ آخری بات جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی ہاں، اس ٹویٹ کا مجھے بالکل اندازہ ہے، اور یہ ایک سچی کہانی ہے، اور جن کی کہانی ہے ان کو بھی میں جانتی ہوں، لیکن میری عمر انفارچونیٹلی 21 سے بہت زیادہ تھی تو یہ میری کہانی نہیں ہے۔ تو جن کی کہانی ہے وہ اب فی الحال پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ انہی کی کہانی ہے، اور یہ کہانی اگر وہ خود ہی سنائیں گی، اگر وہ سنانا چاہیں گی، وہ پروگیٹو ان کا ہے۔ میں یہ ایک تو یہ بتا دیں کہ 2014 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے سے روکا تھا اور کس نے آپ کی زندگی اجیرن کی تھی، اور آج 2023 میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دے دی یا آپ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی؟ اچھا، ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2014 میں جب آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ ممکنہ طور پہ میڈیا میں بھی آیا تھا، ایک ہمارے دوست جرنلسٹ سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان شاید باپ بننے والے ہیں اور ایک 21 سالہ خاتون کی ہاتھ میں ان کی کوئی فیصلہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع؟ ہاں جی، تو 2014 میں لندن میں تھی، میں لندن چلی گئی تھی، مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا، میری اپنی ایک ڈیسیجن تھی کہ میں پاکستان سے چلی جاؤں، اور جس ایجنسی کے ساتھ لندن میں میرا کانٹریکٹ ہوا تھا، لکھی ہے ویئر اوپیم گروس، اور اس میں اس کی آج رونمائی ہو گئی، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اس میں بہت زیادہ تر مواد تو وہ ہے جو سیاسی کلچر کے حوالے سے ہے، لیکن 2-3 باتیں اتنی بڑی حاجرہ صاحبہ نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کا جو چہرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے، اور اب اتنا بھیانک روپ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مسلم ہسٹری میں تو کم سے کم کسی
लीडर या किसी बड़े मशहूर आदमी या हीरो या जो सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं वो नहीं देखने में आई। इसने खैर कुछ बातें तो काबिल इशात हैं और एक दो बातें तो ऐसी हैं जो ज़ाहिर है वो किसी को आसानी से एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। मसलन एक तो ये सिंपल बात लिखी कि ये वो शख्स था जिसने मेरे भाई को भी कोकैन का आदी कर दिया। अब कोकैन का आदी हर शख्स नहीं हो सकता। इमरान खान के असाब खिलाड़ी होने की वजह से मजबूत है और वो कोकैन का एडिक्ट होने के बावजूद उसने अपना जो वजूद है वो मेंटेन करके रखा है, लेकिन हर आदमी कोकैन का तहम्मुल नहीं कर सकता, जिंदगी और सेहत उसकी बर्बाद हो जाती है। दूसरी बात उसने लिखी है कि ये शख्स किरदार है, उसको उसने लिखा है कि इतना गंदा किरदार और बड़ा मायूस कन, क्योंकि ये हाजरा साहबा जो है ये 2011 में इमरान खान की अकीदतमंद हुई थी, उनको क्रिकेट के एक कॉमिक हीरो के तौर पर उनको लिया था, लेकिन बाद में जब ये 2-3 साल उनके करीब रही, बनी गाला आना जाना रहा, जमान पारक आना जाना रहा और गुर्बत रही और सियासी वाबस्तगी भी हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि इतना गलीज आदमी मैंने नहीं देखा। उन्होंने इसको जो खिताब दिया वो 2 खिताब दिए हैं। एक तो ये कहा कि सेक्सुअल एडिक्ट नार्सिसिस्ट, यानी वो बाश जिनसियत ज़्यादा आदमी जो कि नरगसियत का मरीज है, और इसके अलावा उन्होंने इसको एक खिताब दिया हसलर का, यानी यहाँ जो हसलर के जो माने जिस मानों में इस्तेमाल किया उसमें वोर, प्रास और हुकर एक बड़ा बदनाम लफ्ज़ है, इस तरह के अल्फाज के मानों में इसने इसको हसलर लिखा है। और वो जो जादूगरनी है उसका जिक्र भी किया है, उसको इसने तवाइफ का खिताब दिया है। अब तवाइफ का खिताब क्यों दिया है इसके बारे में एक कहानी बयान की जाती है जो कई लोगों ने बयान की और बहुत सारे लोग उसकी तस्दीक करते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं इल्म, लेकिन लोगों से सुना है कि खाबर मानिका के साथ शादी से पहले लाहौर में इसका कोई बिजनेस था। तो अब वो बिजनेस क्या था, अब हम तो उस बिजनेस से ताल्लुक वालों को भी नहीं जानते। तो बहरहाल वो बिजनेस था जिसकी बुनियाद पर इस हवाले से बड़ी अजीब कहानियां मशहूर हैं लाहौर के उन इलाकों में जहां ये रहती रही है, जहां इसका बिजनेस था। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में उन्होंने, बल्कि यकीनन उसी मानों में इसको उन्होंने लिखा है कि ये तवाइफ, और लिखा है कि एक हसलर और एक प्रास, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक और बात उसने लिखी है वो तो बड़ी ही भयानक और नाकाबिल तस्वर है, वो ये है कि ये इमरान खान जो है ये बेस्टियल है। अब बेस्टियल के माने अब किस प्रोग्राम में किस तरह एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, आपने मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पर पढ़ लिया होगा। तो बहरहाल ये एक चश्मदीद गवाह का बयान है और इसने हाजरा साहबा ने लिखा है, कहा है कि इस किताब में मैंने जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर कोई इनको जिन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर इमरान खान या पीटीआई का कोई उम्मीदवार उनको झूठा समझता है तो मैं चैलेंज करती हूँ कि वो अदालत में और अदालत में बयान करे। तो इस पर अब क्या, यानी आदमी इसका जिक्र भी नहीं कर सकता कि ये इस घिनौने सुपर किस्म का जो एक घिनौना किरदार होता है ना, ये सेक्सुअल परवर्ट है और सुपर से सुपर जो डिग्री का सेक्सुअल परवर्ट है, ये वो आदमी है। मैं ये पहले बता दूं कि रिहाम खान की किताबों में भी जिक्र आया था इसकी बदकिरदारियों का बड़ा लंबा चौड़ा, और उसके बाद में उसकी तस्दीक में बहुत सारी खबरें आई थी उस किताब में। और इस किताब में फर्क क्या है, रिहाम खान ने अपनी किताब में हवाला दिया था वो मुराद सईद का, और वो एक हमजा अब्बासी है वो जो नौज़ुबिल्लाह खुद को गुज़वा हिंद, अब गुज़वा हिंद और रियासत मदीना देखिए ये लोग किन मानों में लेते हैं, जुल्फी बुखारी और वो एक ख्वाजा सरा रमल, खैर उसका जिक्र तो किताब में नहीं था लेकिन वो बाद में नमूदार हुई। तो इस तरह के जो तज़किरे थे वो ज़ाहिर है किसी शरीफ आदमी को आप कोट भी नहीं कर सकते कि उसमें क्या लिखा था। तो लेकिन रिहाम खान की किताब और इस किताब में एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि रिहाम खान की किताब उस वक्त लिखी गई जब पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इमरान खान का शिकंजा इतना सख्त था कि ना कोई बोल सकता था ना कोई लिख सकता था। तमाम मीडिया को मना कर दिया गया था कि रिहाम खान की किताब का हवाला नहीं देना, कोई तज़किरा नहीं करना। चुनाचे सोशल मीडिया पर उसका तज़किरा हुआ, लेकिन टीवी में और प्रेस में एक सत्र भी इस बारे में छपने नहीं दी गई, सिवाय इसके कि रिहाम खान ने किताब लिखी है जो छप गई है, इसके अलावा कुछ चीज़ जिक्र नहीं हुई। और रिहाम खान खुद भी लंदन में थी, पाकिस्तान वो डर के मारे नहीं आई। और दूसरा एक फैक्टर ये था कि रिहाम खान की इमरान खान से तलाक हुई थी, तो चुनाचे एक इनको पीटीआई वालों को ये बहाना मिल गया कि चूंकि वो तो तलाक याफ्ता लिहाजा उसकी बात का एतबार नहीं, क्योंकि उसमें दुश्मनी नफरत और
इस तरह के अवामिल शामिल हो जाते हैं। हालांकि बताने वालों ने और जानने वालों ने बताया कि रिहाम खान ने इसमें किसी भी जगह एक सत्र का मुबालगा भी नहीं किया। इमरान खान जो कुछ करता था वही उसने लिखा है और उसके शाहिदीन और गवाह बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो उस किताब में तो रिहाम खान ने इमरान खान और उसकी जो बीवी है जादूगरनी, इसके जादू टोने का भी जिक्र किया था और भी कई चीजों का जिक्र किया था। अच्छा, इससे जो हाजरा साहब पानीज़ई साहब जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में किताब लेकर आई हैं। जब वो अब इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन उनकी किताब की रूनुमाई हुई है उसी दिन प्रोजेक्ट इमरान का एक बहुत बड़ा ठेकेदार उसका एक अहम सीट से तबादला हो गया और अब उसको खुले लाइन लगा दिया गया है। वही जो इमरान खान के मुखालफों को ट्वीट किया करता था कि यू आर बार्किंग डॉग्स, यानी ये एक इतना बड़ा अफसर वो अपने ने इमरान खान के मुखालफों को भौंकने वाला कुत्ता करार दिया करता था। और उसकी गिरफ्त इतनी थी मीडिया पर कि मीडिया के चलते प्रोग्राम में उसका फोन आता था कि इस प्रोग्राम को बंद करो, और वो टीवी मालकान की जरूरत नहीं होती थी कि वो प्रोग्राम बंद ना करते, वो प्रोग्राम बंद करना पड़ता था। तो वो अब वो नहीं है और वो सिस्टम भी नहीं है, वो प्रोजेक्ट इमरान खान लपेटा जा चुका है। एक तो ये फर्क है, और दूसरा फर्क ये है कि हाजरा खान पाकिस्तान में मौजूद है, लंदन में नहीं है। अब इस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान की साबिक़ा अहलिया हैं वो भी पाकिस्तान आ जाएंगी और उनकी किताब का जो अगला हिस्सा या जो नई किताब लिख रही हैं उसकी तकरीबी रुनुमाई पाकिस्तान में करेंगी। और मेरा ख्याल है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये इस दौर का हसन बिन सबा जो है, बल्कि हसन बिन सबा से भी 10 हाथ आगे जाकर ये बदतरीन परवर्ट आदमी, इसकी नकाब कुशाई होनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान के मफाद में बात है, क्योंकि इसने एक पूरी नौजवान नस्ल को ज़ुम्बी और ब्रेन डेड बना दिया है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो कुछ रिहाम खान ने लिखा और जो कुछ ये हाजरा पानीज़ई साहब ने लिखा, खास तौर पर वो जो बेस्ट सेल वाली बात है, अगर ये बात उनके सामने की जाए तो वो कहेंगे तो फिर क्या हुआ, हर आदमी गुनाहगार है, यानी इस दर्जे का गुनाहगार हर आदमी इनके ख्याल में। और फिर ये कहेंगे कि हाँ ये तो हम सब ऐसे ही हैं, हालांकि हम सब ऐसे नहीं हैं। ये जो पीटीआई वाले कहते हैं ना कि हम सब ऐसे हैं, तो वो अपनी पीटीआई के बारे में बात करें कि हम सब ऐसे हैं। पूरा मुल्क को इस हम सब की लपेट में वो नहीं ले सकते। तो रिहाम खान को भी बहरहाल आकर पाकिस्तान ही आकर इस किताब, अपनी नई किताब की जब वो छपती है तो पाकिस्तान आकर ही इसकी रूनुमाई करनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब इस किताब से फिर वो बहस छिड़ गई कि इमरान खान पुराना पापी है। पापी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब इससे बड़ा लफ्ज कोई है ही नहीं, वरना इमरान खान तो वो शख्सियत है कि जिस पर वो जो मैथमेटिक्स में और साइंस में एक टर्म होती है ना, वो किसी की पावर, किसी अदद की पावर, यानी 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 का मतलब होता है कि 10 के आगे 10 सिफर लगा दिए जाएं। तो वो एक उसको शार्ट यानी हिंसों में लिखने के लिए अगर 10 के आगे 10 सिफर लगाएं तो वो तो आदत बार बार आप लिख ही नहीं सकते। वो जो मशहूर है एनर्जी वाली मसावात, एनर्जी E = mc², तो वो स्क्वायर भी जो है वो दरअसल ज़रब खाता है, यानी वो अदद को छोटा करने के लिए, वरना अगर अदद पूरा लिखे तो वो पूरा सतर उसमें 2 सतरें उसमें आ जाएंगी। तो ये जो पापी है इसकी ताकत जो है स्क्वायर लगा दें, ये इस तरह का आदमी है, इसकी डेफिनेशन। तो लोगों ने बड़े किस्से शेयर किए हैं कि इसकी जो बदकारियों की कहानी है वो तो जब क्रिकेटर था, ये बिल्कुल अवाइल उम्री में तब से शुरू हुई है। और मुझे एक साहब ने बताया कि इमरान खान की जिंदगी के पहले 8 साल निकाल दो, ये 72 साल का है इस वक्त, 72 या 73 साल का, तो 8 साल जिंदगी के पहले निकाल दो, बाकी बचे 66 साल। तो 66 साल जिंदगी का एक एक दिन बदकारियों की नई किताब का उन्वान है, हर दिन बदकारियों की एक नई किताब। इसके माशके शुरू हुए, जीनत अमान इसकी बड़ी मौत थी, भारतीय अदाकारा, मशहूर अदाकारा, और वो बड़े बोल्ड किरदार अदा करती थी। वो इसकी फैन थी क्रिकेट की वजह से, वो इससे मिली तो इसने उससे दस्त दराजी की, जिससे वो बोल्ड किरदार अदा करने वाली जीनत अमान भी बौखला गई और उसने ये फिक्रा कसा इस पर के नाम बड़ा और दर्शन छोटे, ये उसने जीनत अमान ने लिखा था। उसके बाद इंडिया की और लड़कियां, अमेरिका के और लड़कियां, सीता वाहिद, पाकिस्तान में इनबिसात यूसुफ, वो कैसलाउद्दीन सल्ली की जो साबका बीवी थी, इनबिसात खान क्या नाम था उसका, और फिर चलते चलते कितनी औरतें, बरतानिया की, लंदन के टीवी ने
इमरान खान के माशकों की एक शर्मनाक दास्तान इसके सामने बयान की, और ये खुश होकर बताता रहा कि हाँ फलानी लड़की ऐसी थी, फलानी लड़की वैसी थी। वो बड़ा ही गंदा वीडियो क्लिप है। और फिर पाकिस्तान में ये आयला मलिक उसकी बहनों के साथ, उसकी बहन और पता नहीं एक टीवी एंकर खातून है, मोहतरम खातून है, उनकी हमशीरा के साथ इसने गंदगी गुफ्तगू की। और फिर वो आयशा गुलाल आई, और फिर यानी एक लंबी कहानी है। तो अब इस पर बात हम क्या करें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मामला इतना नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान में एक खास किस्म के कल्चर को डेवलप किया है, या आप इसको बात को उलट कर लें कि एक खास किस्म का कल्चर जो मुशर्रफ के दौर में पनपा, ग्रो किया, फैला और एक नई क्लास नमूदार हुई, तो उस कल्चर के सारे लोग पीटीआई के हामी हैं, इमरान खान के हामी हैं। क्यों? उन्हें अपने तर्ज जिंदगी की, अपने लाइफस्टाइल की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी कार्नर बेस्टियलिटी की जो सारी तस्वीरें हैं वो इनको नजर आती हैं इमरान खान में और उसके हामी है। ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ और इमरान खान के दौर में नुक्ता उरूज को पहुंचा। आप एक नया कल्चर मुशर्रफ के बाद के ज़माने में डेवलप हुआ, इमरान खान के ज़माने में उरूज को पहुंचा, और इसमें ज़ाहिर रहील शरीफ भी शामिल था, उसमें बाजवा भी शामिल था, और इनकी सारी लाट शामिल थी। इन लोगों ने